Please like, share, subscribe and click the bell icon for latest updates from BioRatna. Find the link for DPP and notes in the description box. It is highly recommended to prepare your own notes while following the lecture. Be assured that your notes will include all points of NCERT as the lectures are very thorough. A revision of previous session is there at the beginning of each new session for every chapter. This will be very helpful for Standard 12 students for a quick catch up with Standard 11 topics during their busy Class 12 schedule. This is equally important for Standard 11 students to maintain continuity in their learning process as well as help prepare a solid foundation. Welcome to BioRatna, dear students. Today we are going to discuss that phyla which derives its name from the very fact that it has jointed appendages. Like it has jointed legs, it has jointed antenna, and it is the largest phylum of animal kingdom. That is, today we are going to discuss phylum Arthropoda. But as is the practice with us, first we will revise that phylum which we have discussed in the previous session. That is phylum Annelida. First we will do the revision of phylum Annelida. Students, for every phylum, first we are taking the help of the sequence in which the basis of classification points were discussed in NCERT, and then we are taking the help of table 4.2. इसमें क्या क्या पॉइंट्स है, इस तरह से सोचते हुए जब हम लिखते हैं तब हमारा कोई भी पॉइंट छूटता नहीं है. सो फर्स्ट वी विल एज पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखने से पहले हम ये देखते हैं कि इसे एनिलिडा नाम कैसे मिला. दिस एनिलिडा नेम this phylum has got from the word annulus. Annulus means small rings. Annulus means small rings. Students, this phyla, it shows metameric segmentation. Metameric segmentation दिखाता है मतलब इसकी body externally as well as internally it is divided into segments. So we can see 1, 2, 3, many segments one after another. Many segments or many rings or many annuli. From that, it has derived the name Annelida. अब आ जाइए basis of classification. First point was level of organization. It has organ system level of organization. It has organ system level of organization. Next क्या था? Symmetry. It has bilateral symmetry. Bilateral symmetry. Then what? Then about the germ layers. Germ layers diploblastic है या triploblastic है. So this is triploblastic. Triploblastic start हो गया था platyhelminthes से, तो triploblastic ही चलेगा. So this is triploblastic arrangement. After that, in that sequence, it comes the type of coelom. In the previous phylum, it was pseudocoelom, और यहाँ से होते हुए Annelida से होते हुए everyone will have true coelom. So they have true coelom. True coelom means that body cavity which is lined by mesoderm. What next? Next is segmentation. ये इस phylum का बहुत important point है. Segmentation. This shows the true segmentation. True segmentation is present in Annelida, Arthropoda and Chordata. But in case of Annelida, external as well as internal segmentation is present. So इसके पास segmentation है and this phenomena is called metamerism. Metamerism. That the body is externally as well as
internally divided into segments with repetition of some organs in at least some segments. Same organ कोई ना कोई segments में repeat भी होता है. This is found in Annelida. Segmentation तक आ गए. उसके बाद हम चलेंगे टेबल 4.2 में. टेबल 4.2 से जब हम पॉइंट्स उठाते हैं बच्चे, यही सारे पॉइंट्स उसमें भी होंगे, हर फाइलम के बारे में दिया हुआ होगा. दैट्स अ वेरी नाइस टेबल. लेकिन इसी तरह से तोड़ तोड़ के पढ़ते पढ़ते जाते हो तो लास्ट में वो जाइजेंटिक नहीं लगता. सो टेबल 4.2 में इसके अलावा 3 points which are discussed. They are, one is its digestive system, one is circulatory system and one is respiratory system. बाद में हम पढ़ेंगे इसका लोकोमोशन. डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट. इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट है. कंप्लीट मीन्स द एलिमेंट्री कैनाल हैज 2 openings, one for ingestion, one for egestion. That is माउथ एंड एनस दोनों है जिसके पास, उसे कंप्लीट कहते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम, फॉर द फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट. अभी जैसे पॉरीफेरा से आपने पढ़ना शुरू किया था, वहां से लेके किसी में नहीं था बच्चों. दिस Annelida is the first one which shows the presence of circulatory system. Yes, it is present and it is of closed type. Closed type का मतलब the one in which blood flows through closed chambers. Closed chambers, heart is a closed chamber. The arteries and veins are closed chambers and their capillaries are the closed chambers. So the blood, the circulatory system, it is of closed, it is closed system. Respiratory system इसमें present नहीं है, अभी तक किसी में नहीं था, इसी में भी नहीं है. इसके बाद वाले में मतलब the one which we are going to discuss today, उसमें respiratory system है बच्चों. इतना हमने पढ़ लिया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और टेबल 4.2 की मदद से. इसके अलावा याद रखो बच्चों कि हमें एनालिड्स में लोकोमोशन के बारे में पढ़ना है. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है लोकोमोशन का. लोकोमोशन इज बाय मीन्स ऑफ, इसमें हो सकता है या तो सर्कुलर मसल फाइबर एंड लॉन्जिट्यूडिनल मसल फाइबर, इसकी मदद से करें, या कुछ एस शेप्ड काइटिनस स्ट्रक्चर्स होते हैं सिटी, उसकी मदद से करें, या पैरापोडिया की मदद से करिए. दिस आर अ बिट फ्लेशी स्ट्रक्चर्स. और द मूवमेंट मे बी विद द हेल्प ऑफ सकर. अब ये सर्कुलर मसल फाइबर और लॉन्जिट्यूडिनल मसल फाइबर ये इन तीनों में प्रेजेंट होंगे. जैसे नेरिस जो है, नेरिस इज मराइन फ्री लिविंग एनेलिड, ठीक है. और लीच इट इज फ्रेश वाटर एक्टोपैरासाइट. इट इज फ्रेश वाटर एक्टोपैरासाइट, बाहर से बॉडी में चिपक जाता है और खून चूसता है. एंड अर्थवर्म इट इज टेरेस्ट्रियल, इट इज टेरेस्ट्रियल. तो देखें अब किस में कौन सा प्रेजेंट है. दिस सर्कुलर मसल फाइबर एंड लॉन्जिट्यूडिनल मसल फाइबर. अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है तो इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर की ओर ये दिस लॉन्जिट्यूडिनल मसल फाइबर्स आर देयर, और ऊपर से ये जो है ये है सर्कुलर मसल फाइबर. तो दिस longitudinal muscle fiber and circular muscle fiber, they are present in all the 3. Nares भी, leech भी, earthworm भी. Now come to setae. The setae are present in large number in case of nares. Nares में बहुत ज़्यादा है और ये earthworm में भी present है. Setae are present in nares as well as earthworm. Now come to parapodia. Parapodia is the locomotory organ only in case of nares. वो नेरिस को स्विम करने में मदद करता है. नेरिस के जितने सेगमेंट्स हैं उसका फर्स्ट सेगमेंट दैट इज पेरिस्टोमियम एंड इट्स लास्ट सेगमेंट दैट इज पाइजिडियम, इन दोनों को छोड़ के हर सेगमेंट में 1 पेयर ऑफ पैरापोडिया होते हैं. तो 1 पेयर ऑफ पैरापोडिया आर देयर. जैसे कोई एक ही सेगमेंट में अगर हम इसे देख लें तो ये हो गया उसका पैरापोडिया, इसमें भी बना दो. दिस आर द
parapodia. This is parapodia. This is present only in case of Nereis, not in leech, neither in earthworm. तो ये Nereis के पास parapodia है. Then come to sucker. Sucker is present only in case of leech. It is not present in Nereis, neither in earthworm. This was about their locomotion. Fine. और ये जो Nereis का सीटी है कहाँ प्रेजेंट होता है, देखो बच्चों, यही पैरापोडिया पे इस तरह से इसके सीटी दे आर प्रेजेंट. दिस आर द सीटी. सीटी से ये क्रॉल करता है. जैसे सपोज, ये रॉन्ग एग्जाम्पल है, हमारे हाथ का एग्जाम्पल और उसका दोनों एग्जाम्पल सेम नहीं है, बट समझने के लिए बहुत अच्छा है. सपोज दिस इज द पैरापोडिया एंड दिस आर द सीटी. जब उसे स्विम करना होता है तो वो पैरापोडिया की मदद से स्विम करता है. जब उसे क्रॉल करना होता है तो वो अपने इन सीटी की मदद से क्रॉल करता है. नाउ द एक्सक्रीशन इन एनेलिडा. बच्चों, द ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन इन केस ऑफ एनेलिडा इट इज नेफ्रिडिया. नेफ्रिडिया, और इसका काम सिर्फ एक्सक्रीशन ही नहीं है, इसका काम ऑस्मो रेगुलेशन भी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, ऑस्मो रेगुलेशन as important as excretion. Osmoregulation means the proper balance of water and minerals in the body. So nephridia are the organs of excretion. Now what about its neural system? Neural system में क्या पढ़ा था याद है, और chordates से इसमें फ़र्क क्या है? These annelids they are non-chordates. Non-chordates में जो nerve cord होता है that is ventral, solid, double and hollow. पहले देखते हैं क्या इसमें ब्रेन होता है. ब्रेन नहीं होता, लेकिन सेरिब्रल गैंग्लिया ज़रूर होते हैं. तो 2 सेरिब्रल गैंग्लिया हो गए, और यहाँ से अगर दिस इज़ द डाइजेस्टिव ट्यूब इज़ गोइंग ऑन, तो इसके नीचे की तरफ दूसरे गैंग्लिया हैं. हाँ, दीज 2 गैंग्लिया दे आर अटैच्ड बाय दिस कनेक्टिव्स. ये कनेक्टिव से ऐसे जुड़ा हुआ है. एंड देन हियर देयर इज दिस डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. ये 2 नर्व कॉर्ड है, दैट्स वाई डबल. सॉलिड है, अंदर में कोई भी हॉलोनेस नहीं है. जैसे जस्ट रिकॉल व्हाट यू स्टडीड द डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 10th. उसमें आपने पढ़ा था ऐसे, ये अगर दिस इज स्पाइनल कॉर्ड का टीएस है जो आपने पढ़ा था रिफ्लेक्स एक्शन में. देन हियर देयर इज दिस एच शेप्ड, दिस इज द दिस इज द ग्रे मैटर, दिस इज द ग्रे मैटर, दिस इज द वाइट मैटर. और फिर यहाँ पे आपने एक ऐसा इस ग्रे मैटर में यहाँ एक होल दिखाया था. मीन्स इफ दिस इज द नर्व कॉर्ड इन केस ऑफ कॉर्डेट्स, तो इसके अंदर में ऐसे ये हॉलो है, अंदर से एक कैविटी पास करती है. तो आप टीएस लेते हो तो ये कैविटी आपको दिखाई देती है. ठीक है. सो this is in case of chordates. In case of non-chordates, there is no cavity, so they are called solid. तो ये याद रखना होगा आपको कि ये जो 2 ventral solid means not hollow. 2 पहले ही लिख दिया. Ventral solid double nerve cord. Nerve cord. This is cerebral ganglia. This is cerebral ganglia. And this is subpharyngeal ganglia. Subpharyngeal ganglia. यहाँ से होते हुए फिर 2 ये नर्व कॉर्ड अराइज होंगे. एंड दीज नर्व कॉर्ड्स दे आर गैंग्लियोनेटेड. इनमें भी गैंग्लिया होंगे और ये गैंग्लिया एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड होंगे. दिस इज द न्यूरल सिस्टम इन केस ऑफ एनेलिडा. दिस इज द स्ट्रक्चर इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट्स. फाइन. अब एक्सक्रीशन हो गया, न्यूरल सिस्टम हो गया. सो नाउ द रिप्रोडक्शन आप देखते हो कि नेरिस में डिफरेंट है बच्चे. इन केस ऑफ नेरिस इट इज़ यूनिसेक्सुअल.
नेरिस जो है, दिस नेरिस इट इज यूनिसेक्सुअल, whereas if you see the earthworm and leech, ये earthworm और leech जो है they are bisexual. They are bisexual means both male and female gametes are formed by the same organism, and the reproduction in annelid only sexual reproduction is found. Sexual reproduction is found in case of annelida. हो तो गया annelida का रिविजन। 2 डायग्राम्स है बच्चों। अर्थवर्म की डिटेल स्टडी हम लोग बाद में करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में। तो यहाँ 2 डायग्राम्स दिए हुए हैं एंड द डायग्राम ऑफ नेरिस लुक्स कॉम्प्लिकेटेड। और लीच का चलिए देख लेते हैं कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं। द डायग्राम ऑफ नेरिस, 2 डायग्राम्स आर गिवन इन योर एनसीईआरटी, one is neris and one is hirudinaria. बच्चों, in the description box you will find the timestamps for the revision phylum also and the new phylum which we are going to discuss also. Please find the timestamps, they are for your own convenience. जो पढ़ना है आपको वहाँ से आप निकाल लोगे। So this neris diagram, as it is annelida, so it will have the segmented body. तो इसकी बॉडी ऐसे हमने बना ली और इसमें हमने सारे सेगमेंट्स बना लिए 1 2 3 4 करते हुए। ये हो गए नेरिस की बॉडी के ढेर सारे सेगमेंट्स। द लास्ट सेगमेंट इट इज कॉल्ड पाइजिडियम। ये लास्ट वाला जो सेगमेंट है इसे नाम दे दीजिए, दिस इज द पाइजिडियम। एंड द फर्स्ट सेगमेंट, this is called peristomium. This is peristomium. Peristomium. तो if peristomium this is the first one, तो उसके सामने क्या है? This is not the first segment. It is a hood-like structure present in front of the first segment. This is called prostomium. This is prostomium. Peristomium के सामने prostomium. This prostomium it has many appendages. कौन से appendage होते हैं? This is 1 pair of tentacle. ये हो गया इसके tentacle. Then there are 1 pair of palps. तो ये हो गए उसके palps. These are the palps. Other than this, this is 1 pair tentacle and this is 1 pair. This is palp. इसके अलावा प्रोस्टोमियम में 4 आंखें होती है 1 2 3 4. So these are the eyes. These are the eyes. These are present in prostomium. Peristomium में क्या है? Peristomium it consists of 4 pairs of long tentacles or we call it cirri. So these are the cirri or long tentacles. हो गए प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब बाकी सेगमेंट में क्या है? दिस फर्स्ट सेगमेंट और लास्ट सेगमेंट को छोड़ के बाकी सारे सेगमेंट्स में एक लोकोमोटरी ऑर्गेनेल है बच्चों। दिस लोकोमोटरी ऑर्गेनेल इज कॉल्ड पैरापोडिया. दिस इज कॉल्ड पैरापोडिया. सो दिस इज द पैरापोडिया. 1 pair in each segment. As you can see, 1 pair in each segment. ऐसे सारे में रहेगा, सिर्फ इस लास्ट वाले में इसे नहीं रहना है तो लास्ट से पहले वाले में भी बना देते हैं कुछ 2-4 में. सो दीज आर द पैरापोडिया. इस पैरापोडिया के ऊपर देर इज 1 more locomotory organelle. This is the CT. These are the SETAE. These are present. सीटी उसे क्रॉल करने में मदद करती है, पैरापोडिया उसे स्विम करने में मदद करता है. सो दिस पैरापोडिया एंड सीटी दे आर नॉट प्रेजेंट इन पेरिस्टोमियम, दे आर नॉट प्रेजेंट इन पाइजिडियम. पाइजिडियम में कुछ और है. पाइजिडियम में 1 terminal anus is there and a pair of anal cirri are there. There is 1 pair of anal cirri. That's it. This is Nereis. Now come to Hirudinaria. This Hirudinaria, this belongs to the class
Hirudinea. Hirudinaria belongs to the class Hirudinea. Nereis belongs to the class Polychaeta. Earthworm belongs to the class Oligochaeta. बहुत सारे सीटा है तो Polychaeta, Nereis. बहुत थोड़े कम सीटा है then Oligochaeta, that is earthworm. सीटे प्रेजेंट ही नहीं है then it is Hirudinea. एग्जाम्पल Hirudinaria. Hirudinaria में बच्चों 33 सेगमेंट्स होते हैं. 33 सेगमेंट्स हैं. अब इसमें से ये इसके पोस्टेरियर सकर में आप 7 दे दीजिए तो 3, 4, 5, 6, 7 ये हो गया इसका पोस्टेरियर सकर. और बाकी बॉडी को आप डिवाइड कर दीजिए बाकी 25 एन्युलाई में. इस तरह से करते हुए आप इसे बाकी सेगमेंट में कर देते हो. सपोज दिस इज द लास्ट वन. यहाँ हो गया ये. यहाँ फर्दर दूसरे सारे सेगमेंट्स तो है ही है आपके. आई हैव नॉट काउंटेड वेदर दिस इज 25, दिस हैज टू बी 25. तो ये जो लास्ट वाला सेगमेंट है इन टच विद द पोस्टेरियर सकर, इसमें प्रेजेंट होता है एनस. एनस का लोकेशन ये है बच्चा. दिस इज एनस. अब Hirudinaria, it also has one anterior sucker. ऐसे anterior sucker बना दोगे ना तो काम नहीं चलने वाला है. ठीक है, ऐसे anterior sucker उसका नहीं होता है. The sucker is not visible from the dorsal side. ये अगर dorsal side है यहाँ से आपको sucker दिखेगा नहीं. इसको आप ऐसे उल्टा करते हो on the ventral side. तो अगर ये इसके 1, 2, 3, 4 4 सेगमेंट है then the sucker it occupies the 4 segments. 4 segments occupy करते हुए ये हो गया उसका anterior sucker. This is the anterior sucker. यहाँ 4 segment occupy करता है ये. That's it. This Hirudinaria, it sucks blood. It is ectoparasite. ठीक. This was all about our revision of Annelida. And now we are going to study the phylum Arthropoda. These arthropods, students, they are the largest phylum of animal kingdom. Largest means how large? Suppose that all the phylum taken together, दुनिया में जितने भी animals हैं, सबके species अगर आप count करते हो, suppose they are 10 in number. Then phylum Arthropoda, it alone has 2/3 of the species. 10 में से 7 arthropod species ही होंगे. They are so large. So this Arthropoda, the first point, that is arthropods, this is the largest phylum of animal kingdom. नेक्स्ट पॉइंट है जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि दे आर द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम. दे इंक्लूड इंसेक्ट्स. इंसेक्ट इज वन ऑफ द क्लासेस ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा टोटल इंसेक्ट से ही नहीं बना हुआ है. देर आर मेनी अदर क्लासेस ऑल्सो बट दिस इंसेक्ट्स यू विल फाइंड एवरीवेयर. Those apis from which we get honey, the bombyx from which we are getting silk, all the different vectors, the mosquitoes which are carrying the disease causing pathogens, so many dreaded diseases like dengue, malaria, chikungunya, etc. They are insects. Arthropoda has 7 classes, out of which one is Insecta. और इंसेक्टा ही इसका मेजर ग्रुप है. सो द इंसेक्टा इज द मेजर क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा. दूसरे कौन से क्लासेस हैं? जितने ऑर्गेनिजम्स आपके एग्जाम्पल में या डायग्राम में है एनसीईआरटी के, कम से कम उतने क्लासेस हम देख लें. जैसे देर इज वन डायग्राम, इन डायग्राम यू विल फाइंड स्कॉर्पियन. सो एग्जाम्पल स्कॉर्पियन इज गिवन. इट बिलोंग्स टू द क्लास
ऊपर लिखे ना, यहाँ जगह नहीं बनेगी. इट बिलोंग्स टू क्लास Arachnida. This is scorpion. Then there is prawn also. One example of prawn is given. Prawn belongs to the class Crustacea. ये आ जाता है Crustacea में. और whereas there is one more example, that is of king crab. King crab, or also called Limulus. This king crab, it is different from crab. Crab तो बच्चों आ जाएगा Crustacea में. Here crab is example of Crustacea. Whereas this king crab, it belongs to Merostomata. तो इतने 3 क्लास के एग्जाम्पल्स हमने आपको दे दिए. जितने एग्जाम्पल्स आपको स्पेसिस के दिए हुए हैं आर्थ्रोपोडा में, उसके क्लासेस यू विल फाइंड हियर. नाउ one more important thing is why this is called arthropoda. Arthro, the meaning of arthro is jointed. This is jointed, and poda means legs. But here it will be legs, or you take it as appendages. Why? Because it is not just legs which are jointed, but there are other appendages also, like antenna. So take the next point, that they are called arthropoda because they have jointed appendages. Jointed appendages. जैसे for example jointed legs and antenna. आप कहोगे हम में भी तो jointed है, but their joints are many more. जैसे अगर उसके आप legs का ही ले लेते हो, this legs, इसके अगर parts आप देखते हो, it has coxa, trochanter, then femur, then tibia and tarsus and pretarsus. अब अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, then this tarsus ये further jointed है. This tarsus is further, it has many more segments. So in between all these there are joints. So there are many joints. Similarly, in case of antenna, if you take antenna of insects, it has the basal part which is called scape, then it is pedicel, and then it is the flagella. And this flagella, it has further flagellomeres, many more segments. That's why the arthropods and all the classes, not just insects, all the classes of arthropods, they have jointed legs, so they are called arthropoda. Now the general characters of arthropoda. General characters, for general characters we have always followed the same sequence as is given in basis of classification. सीक्वेंस उसका हम याद रखते हैं, उसी तरह से डालते जाते हैं, तो किसी भी फाइलम में कोई पॉइंट छूटता नहीं है. So in the basis of classification, the first point was the level of organization. So these arthropods, they have organ system level of organization. Next was the symmetry. This arthropoda, it has bilateral symmetry. Then whether they are diploblastic or triploblastic. These arthropods are triploblastic. This is the same sequence we are following. And we are doing it for the study of every phylum. Next it is about the coelom. Arthropods, they have true coelom. इनके पास coelom है. Now, the last, here we take the segmentation. They show segmentation.
दे शो सेगमेंटेशन बट नॉट लाइक द एनिलिड्स की तरह एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल. They show only external segmentation. Let us see here the organ system level of organization. आपको याद है बच्चों ये कौन से फाइलम में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था? प्लैटीहेलमिन्थिस भी है बट एस्केलमिन्थिस फुल फ्लेज स्टार्ट हो जाता है एस्केलमिन्थिस से ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आफ्टर दैट ये नॉन कॉर्डेट्स हो चाहे कॉर्डेट्स हो सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ही रहेगा. That is the importance of first learning the names of phylum in the same sequence as is given in your book because this is systematics. वो phylogenetic relationship के accordingly arrange किया हुआ है. मतलब जो आप पहले पढ़ते हो उसमें simple systems मिलते हैं, simple structures मिलते हैं, simple coelom मिलता है और gradually when वन फाइलम इट अटेन्स सर्टेन कैरेक्टर. जैसे अगर वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का हो गया देन इट विल नॉट गो बैक टू टिश्यू लेवल और ऑर्गन लेवल. अंडरस्टूड? सो नाउ एस्केलमिन्थिस से लेके सारे के सारे ये स्टार्ट हुआ था ना इससे, उसके बाद सारे में रहेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बाइलैटरल सिमेट्री किसमें स्टार्ट हुई थी बच्चे? एस्केलमिन्थिस से एक फाइलम आगे, दैट इज प्लैटीहेलमिन्थिस. प्लैटी से स्टार्ट हुआ और इसमें भी बाइलैटरल सिमेट्री है. पूरा लिखते हैं इसको प्लैटीहेलमिन्थिस. ये सारे आपको कौन सा कब स्टार्ट हुआ था, किसमें कौन सा है, इसे याद रखना ही आपके सारे नीट के क्वेश्चंस आपके इसमें आते हैं. कई तरह से जितने घुमा के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, घुमा के नहीं होते बच्चे, जस्ट आप इसी तरह से सीक्वेंस में याद कर लेते हो तो सारे याद हो जाते हैं. देन ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसका मीनिंग याद है? व्हाट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक? ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, दिस इज एक्चुअली द जर्म लेयर्स. ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक कंडीशन फर्स्ट तो जो जाइगोट होता है वो डिवाइड होते जाता है एंड इट फॉर्म्स मेनी सेल्स. जब बहुत सारे सेल बन जाते हैं एंड ऑल द सेल्स आर सिमिलर, उसके बाद एक फेज आता है गैस्ट्रुलेशन जिसमें अचानक ये सेल दे स्टार्ट मूविंग एंड व्हेन दे स्टार्ट मूविंग आफ्टर दैट दे फॉर्म आइदर 2 लेयर्स और 3 लेयर्स. अगर 2 लेयर बनाते हैं देन दे आर डिप्लोब्लास्टिक एंड द लेयर्स आर एक्टोडर्म, एंडोडर्म. इन बिटवीन जो एक लेयर नहीं बना वहाँ पे एक नॉन डिफ्रेंशिएटेड मास होता है जिसे कहते हैं मेजोग्लिया. बट हियर इट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स गैस्ट्रुलेशन के समय एम्ब्रियोनिक कंडीशन में 3 लेयर्स बने थे. कौन से 3 लेयर्स बने थे? वन वॉज एक्टोडर्म, दिस वॉज एक्टोडर्म, मिडल वॉज मेजोडर्म एंड इनर वॉज एंडोडर्म. इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी ट्रिप्लोब्लास्टिक की? इसकी भी शुरुआत प्लैटीहेलमिन्थिस से ही हुई थी. देन अबाउट सीलोम. सीलोम वी हैव रिटन दैट इट हैज ट्रू सीलोम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू सीलोम? सीलोम इज बॉडी कैविटी. ये बॉडी का वॉल है, ये बीच में एलिमेंट्री कैनाल है, इसके बीच की जो स्पेस है अगर यहाँ पे कैविटी है दैट टू इफ इट इज लाइंड बाय मेजोडर्म, मतलब इस साइड में भी मेजोडर्म, इस साइड में भी मेजोडर्म, देन इट इज कॉल्ड ट्रू सीलोम. फाइन. ये ट्रू सीलोम प्लैटीहेलमिन्थिस में नहीं था. प्लैटीहेलमिन्थिस में कोई सीलोम ही नहीं था. एस्केलमिन्थिस में सूडोसीलोम था. सूडोसीलोम मीन्स द सीलोम विच इज नॉट लाइंड बाय मेजोडर्म. सो annelids were the first it was seen in annelida. इसके बाद तो अब सभी में ट्रू सीलोम ही रहने वाला है because this is systematically arranged, phylogenetically arranged, according to their evolutionary history it is arranged. So they have arthropods, they have true coelom. अब देख लेते हैं segmentation का. Metameric segmentation you studied in annelida where the body is externally as well as internally was divided into segments. बाहर से तो segmentation दिखता ही था, annuli छोटे छोटे rings दिखते थे. Internally also there were septa. Here in case of arthropods,
इट इज़ नॉट इंटरनल सेगमेंटेशन बट इट इज़ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। जैसे आप अगर कॉकरोच को ही ले लेते हो ना बच्चों, तो आप कॉकरोच में देखोगे कि ये अगर उसका हेड है, देन इट इज़ थोरैक्स, वन इज थोरैक्स। थोरैक्स के 3 पार्ट होते हैं, सो 1 2 3, दिस ऑल आर थोरैक्स के 3 सेगमेंट्स। आफ्टर दैट इट इज एब्डोमेन। ये एब्डोमेन के 10 सेगमेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो दिस इज द एब्डोमेन। Thus you can see that the body is divided into segments in case of arthropods. Thus arthropods, they show segmentation. And each of this segment, ये हर segment, it is covered by exoskeleton. So there is exoskeleton made of chitin. This is hard बच्चों, chitin is hard and it is a complex polysaccharide. This chitin, the whole body is covered with hard chitinous exoskeleton. और ये chitin, अब यहाँ तो इतने सारे अलग अलग सेगमेंट्स हैं, तो हर सेगमेंट में chitin की अलग अलग प्लेट होती है. So naturally, if this segment we take, so this segment will have one upper chitinous plate also, one lower plate also. So the complete covering of the chitinous exoskeleton, it is called sclerite. ये है sclerite, और हर segment में जो upper chitinous plate है, that is called tergite, and the lower plate it is called sternite. तो बॉडी के ऊपर एक हो गई tergite, नीचे एक हो गई sternite, and these two are joined in between by arthroidal membrane. Arthroidal membrane. What is the function of arthroidal membrane? It joins these two. It joins the tergite and sternite. Tergite and sternite. So, क्या पढ़ा हमने? कि उसके chitinous exoskeleton को कहते हैं sclerite. So, this is sclerite. Then, in each segment, the upper chitinous plate, it is called tergite. The lower one is sternite, and tergite and sternite, they are joined together by means of a membrane called arthroidal membrane. Now we see the different organ systems of arthropoda. The organ systems, there is one table at the end of the chapter बच्चों, that is table 4.2. Table 4.2. The previous general characters which we studied, there we took the help of the sequence in which the basis of classification was taught. उतने खत्म हो जाने के बाद फिर हम इस टेबल की मदद लेते हैं. इन दैट टेबल ऑल्सो वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाले जितने हमने पॉइंट पढ़े हैं उसका एक एक कॉलम है. उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी मेंशन है कि इन विच फाइलम इट इज एब्सेंट, इन विच इट फर्स्ट अपीयर्ड, लाइक दैट. सो द ऑर्गन सिस्टम्स टेबल में जो है उसी सेम सीक्वेंस में अगर हम लिखते हैं तो हमें फ़ायदा मिलता है. ये एनिमल किंगडम की पढ़ाई बच्चों, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड दिस टेबल 4.2, दीज आर द टू टूल्स. यही वो नैया है जो आपके इस समुंदर से पार कराने वाली है. अदरवाइज ये एक बहुत बड़ा समुंदर तो है ही. अलग अलग फाइलम के अलग अलग कैरेक्टर कैसे याद रखें? बट दिस टू टूल्स, विद द हेल्प ऑफ दिस टू टूल्स यू विल बी सर्टेनली एबल टू रिमेंबर एवरीथिंग. तो उसमें जो 3 सिस्टम्स दिए हैं, दैट इज वन इज डाइजेस्टिव,
देन सर्कुलेटरी, देन रेस्पिरेटरी। चलिए इन्हें हम देख लें। दिस डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज कंप्लीट इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स। अब कंप्लीट क्या है, इनकम्प्लीट क्या है, ये सारी चीजें हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पढ़ी है बच्चों। और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वो पहला वाला जो टॉपिक है इस चैप्टर का एनिमल किंगडम का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सो यहाँ भी आपको बता दें, कंप्लीट मीन्स द एलिमेंट्री कैनाल विच हैज बोथ एनस एज वेल एज माउथ, इट इज कॉल्ड कंप्लीट। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है जिससे इंजेक्शन एज वेल एज इजेक्शन होता है। इट इज नॉट सो हियर, इट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और फॉर द फर्स्ट टाइम ये कौन से इसमें हुआ था, इसके साथ साथ उसकी भी रिवीजन हो जाए आपकी। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाज फॉर द फर्स्ट टाइम फाउंड इन एस्केलमिंथस। अच्छा, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में और क्या पढ़ना है आपको। डाइजेस्टिव सिस्टम इसकी कंप्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन से 3 पार्ट्स, फोरगट, फोरगट, मिड गट एंड हाइंड गट। फोरगट, मिड गट, हाइंड गट, सामने वाला, बीच वाला, लास्ट वाला। And of course the most important thing, that is the digestion is extracellular. Digestion is extracellular. Extracellular का मतलब अभी तक अच्छे से जान गए आप लोग। एक्स्ट्रासेल्यूलर क्या है, एक्स्ट्रासेल्यूलर है जहां खाने के ऊपर the food is passing through the alimentary canal and the digestive juices are released on the food. आप कहोगे ऐसा ही तो होता है, और क्या अलग होगा। अलग ये होता है जैसे अमीबा में होता है, इट टेक्स इन द फूड। उसी तरह की डाइजेशन आपको बहुत सारे फाइलम्स में भी दिखाई देती है, दैट इट इज इंट्रासेल्यूलर। हियर इट इज एक्स्ट्रासेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर बिल्कुल नहीं है। नाउ कम टू सर्कुलेटरी सिस्टम। This circulatory system in case of arthropoda it is of open type. Open और closed, open closed मतलब जिसमें closed chamber से होते हुए blood pass होता है। Heart closed chamber, arteries and veins closed chamber, capillaries closed chamber. Blood is always inside the closed chambers और वहाँ से होते हुए diffusion से जो materials है वो अंदर बाहर होते रहती है। बट हियर इट इज ओपन मीन्स ओपन का ये मतलब नहीं है इसके पास हार्ट नहीं है। इट हैज हार्ट, इट हैज फ्यू आर्टरीज ऑल्सो, सो इट हैज फ्यू ब्लड वेसल्स ऑल्सो, बट वॉट इज एब्सेंट, द कैपिलरीज आर एब्सेंट, द वेन्स आर एब्सेंट। सो व्हेन द ब्लड कम्स आउट थ्रू द शॉर्ट ब्लड वेसल्स, then immediately they come into the body cavity which is here called hemocoel. तो क्या पढ़ा हमने कि ये open type है, heart is present but then the blood from the heart it comes out through small blood vessels and immediately it fills the body cavity. वहाँ से होते हुए कोई vein नहीं है जो उसे heart की ओर ले जा रहा है, वो धीरे 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 अपने मूवमेंट से बहुत स्लो मोशन में हार्ट की ओर अपने आप बढ़ते जाता है। सो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे ब्लड का मूवमेंट बहुत स्लो होता है। हीमोग्लोबिन इज नॉट प्रेजेंट इन आरबीसी, द ब्लड इज कलरलेस, ब्लड इज कलरलेस एंड इट कंटेन्स, प्लाज्मा में सिर्फ WBC ही प्रेजेंट है। ब्लड इज कलरलेस एंड इट इज कॉल्ड हीमोलिम्फ, इट इज कॉल्ड हीमोलिम्फ। क्योंकि ब्लड का कोई रोल नहीं है बच्चों रेस्पिरेटरी गैसेस को एक्सचेंज करने में। ब्लड ट्रांसपोर्ट्स द अदर थिंग्स, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा, बट इट हैज नो रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज एब्सेंट, ब्लड इज कलरलेस एंड इट इज कॉल्ड हीमोलिम्फ। तो ब्लड में जो कार्पसेल्स है, ब्लड सेल्स है, बट दे आर WBC। हर एक पॉइंट को ध्यान से पढ़े,
हर एक पॉइंट को अच्छे से याद रखें क्योंकि हर पॉइंट एक प्रोस्पेक्टिव नीट का क्वेश्चन है. ओके, और दिस सर्कुलेटरी सिस्टम इट इज ऑफ ओपन टाइप. In case of Arthropoda, circulatory system for the first time it was found in which phylum? ये circulatory system for the first time it was present in Annelida, but of course Annelida में ये closed type का था. Annelida had closed type of circulatory system and the arthropods they have the open type of circulatory system. अब आ जाइए respiratory system में. आर्थ्रोपोड्स आर द फर्स्ट बच्चों जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है. इससे पहले आप देखते हो रेस्पिरेशन जैसे एनिलिड्स थे बाय डिफ्यूजन, मतलब किसी में इससे पहले किसी भी फाइलम में कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं था. सो आर्थ्रोपोड्स दे आर द फर्स्ट टू हैव द रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो ये आर्थ्रोपोड खुद ही है. और इसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इट इज़ बाय मीन्स ऑफ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी सिस्टम है उसमें जिसकी वजह से दैट वी आर गोइंग टू सी जस्ट नाउ, दैट इज ट्रकियल सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम इट इज बाय मीन्स ऑफ गिल्स और बुक गिल्स और book lungs, and there is tracheal system and there is tracheal system. What is tracheal system? देखो बच्चों, हमारे केस में कितने ट्रकिया है? Only one. These are the nostrils which now pass through the nasal chamber. वहाँ से वो फेरिंग्स में ओपन होता है. देन देयर इज ट्रकिया. तो एक ट्रकिया है विच देन एंटर्स चेस्ट कैविटी, डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकी. लंग्स के अंदर वो एंटर करता है, और लंग्स के अंदर ढेर सारे ब्रांचेस बना देता है ब्रोंकी की, मिनी ब्रोंक्यूल्स. लंग्स से बाहर वो नहीं जाता, उसका काम खत्म. बाहर की हवा वो नाक से होते हुए लंग्स तक ले जाता है. फिर ये आपके टोज की, आपके सर की, आपके हाथ की, सबकी अपनी प्रॉब्लम है कि वो अपना अपना ब्लड वहाँ पे भेजे और अपना CO2 वहाँ रिलीज करे, वहाँ से ऑक्सीजन ले ले. द ट्रकिया एंड इट्स ब्रोंकी और इट्स ब्रोंक्यूल्स दे आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर, दे आर सिंपली इनसाइड द लंग्स. दिस वॉज द केस इन ह्यूमन बींग्स. नाउ इमेजिन दिस आर्थ्रोपोड्स. हमारे पास तो सिर्फ हेड में ही 1 पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स है. दे हैव 10 पेयर्स ऑफ होल्स कॉल्ड स्पाइरैकल्स. 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरैकल्स. 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरैकल्स आर देयर ऑन द बॉडी. वन एक साइड से और दूसरे साइड से. They are not present in the center, not dorsally, not ventrally. They are present laterally. सब एक साइड के सपोज ये स्पाइरैकल्स आर देयर. इस स्पाइरैकल से होते हुए these are the trachea. ये ट्रकिया नाउ दे फर्दर डिवाइड. ये डिवाइड होते जाएंगे. ट्रकिया दे आर redivide to form the tracheoles. These are the tracheoles. This is the trachea and this one is the spiracle. ये हो गया spiracle. So when as they go on dividing into tracheoles, तो वो डायरेक्टली हर सेल के पास पहुंचते हैं. और ये tracheoles जो है, if these are the cells, then the branching of these tracheoles they reach each and every cell से होते हुए. दैट्स वाई देर इज उन सेल को कहीं जाने की जरूरत नहीं है. द ट्रकियोल्स हैव देमसेल्व्स कम टू देम and the cells they release their CO2 into that and they take in the oxygen from it.
and the CO2 is then again released through spiracles. This is the respiratory system. This is the tracheal system. और book gills और book lungs में क्या होता है? These respiratory organs, they look like the pages of the books. That's why they are called book gills or book lungs. The excretory system. अब हम लोग देख लें इसका excretory system in arthropods. This is well developed बच्चों. Excretory system, it is well developed in arthropods. इसके excretory organs देख लें कुछ, जैसे इसके excretory organs है, it may be green gland. Green gland, it is present in case of prawn. Prawn में green glands होते हैं. And these green glands, they open at the base of coxa. That's why they are also called coxal gland. They are also called coxal gland. Then there is this Malpighian tubule. Malpighian tubule. What are Malpighian tubules? बच्चों, we just seen कि arthropods में the digestive system is divided into foregut, midgut, hindgut. तो अगर ये है उसका midgut and then this is its hindgut, this is the hindgut and this is the midgut. Then at the joint of midgut and hindgut, here are present around 100 to 150 tubular structures. These are yellowish tubular structures called Malpighian tubules. These are Malpighian tubules. What do they do? ये उसका एलिमेंट्री कैनाल है, तो यहाँ बाहर में उसका हिमोलिम्फ है, the hemocoel filled with hemolymph. So these Malpighian tubules, they collect the waste matter from the hemolymph. वहाँ से उन्होंने waste matter ले लिया, तो waste matter enters into the Malpighian tubules. Malpighian tubule में जाएगा तो ultimate कहाँ जाएगा? So it enters the alimentary canal. यहाँ hindgut में आ जाता है, hindgut से होते हुए it gets excreted. So what are the excretory products, excretory wastes in case of arthropods? अगर ये aquatic है, अगर ये aquatic है, in that case they excrete ammonia or urea. But if it is terrestrial, in that case it excretes uric acid. हो गया, कुछ मुश्किल तो नहीं था excretory system में. और बचा है आपका sensory organs. It's sensory organs. तो इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो अलग से इंपॉर्टेंस देके उसको अलग से पढ़ते ही हैं लास्ट में. We have studied the digestive system, respiratory system, circulatory system, excretory system. Now the sensory organs. Sensory organs में पहला एक उसके पास है antenna, one pair of antenna. Suppose this is head, ये हो गई आँख, ये हो गई यहाँ से ये दो, one pair of antenna. इस एंटेना का काम क्या है? So these antenna, they have the receptors for odor, smell का काम करते, smell लेने का काम करते हैं वो. So this is for odor. Next is eyes. One pair of eyes are there. These eyes may be simple or they may be compound. Simple और compound मतलब एक लेंस है या बहुत सारे लेंस है. बहुत सारे लेंस वर्किंग टुगेदर, देन इट इज कॉल्ड कंपाउंड आई. सो आंखें किसके लिए है? फॉर टू सी, देखने के लिए आंखें हैं, सूंघने के लिए एंटेना है. नाउ देयर इज स्टैटोसिस्ट. स्टैटोसिस्ट इज द बैलेंसिंग ऑर्गन. इट इज द बैलेंसिंग ऑर्गन. अब आप पूछ सकते हो कि क्या उसके पास टेस्ट के लिए कुछ नहीं है? ऑफ कोर्स इट हैज द रिसेप्टर्स फॉर टेस्ट,
but you will be surprised to know that they are present in their feet. So the receptor for taste present in the legs. So these are the sensory organs of arthropoda. Their reproduction, ये ह्यूमन बीइंग से कंपेयर करते जाओगे ना तो याद रखने में आसान रहेगा. These arthropods, they are dioecious. Dioecious means unisexual. दोनों सेक्स अलग अलग है. They are unisexual. Then fertilization is internal. तो ये भी हो गया ह्यूमन बीइंग की तरह. Fertilization is internal. But then human beings, they give birth to the young ones which resemble the human beings. But here they are oviparous. They are egg laying. ये बच्चे को जन्म नहीं देते हैं. They are oviparous. They lay eggs. Then the eggs, they develop further. And their development, it may be direct or it may be indirect. It may be indirect. Now let us see. अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक एक एग्जाम्पल दे दें आपको. डायरेक्ट डेवलपमेंट, इसका एग्जाम्पल आप ले लो. दिस इज प्रॉन. इन प्रॉन द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, वेयर एज इनडायरेक्ट आपको मिलेगा विथ लार्वल स्टेज. इट इज योर हाउस फ्लाई. एग्जाम्पल इज हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई, दे शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. दैट्स इट. नाउ ओनली यू हैव टू सी द एग्जाम्पल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा, एंड आर्थ्रोपोडा के एग्जाम्पल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वाई, यू विल सी जस्ट नाउ. कितनी तरह के एग्जाम्पल्स है और क्या क्या आपको पढ़ना है. फर्स्ट यू स्टडी द एग्जाम्पल्स अंडर द हेड ऑफ इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट आर्थ्रोपोड्स. इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट, इसमें एक हो गया आपका एपिस, दूसरा बॉम्बिक्स एंड देन द लैसिफर और लैक इंसेक्ट. एपिस से हमें क्या मिलता है? एपिस से हम लेते हैं हनी, बॉम्बिक से हम लेते हैं सिल्क, लैसिफर से हम लेते हैं लैक. ये बॉम्बिक्स जिससे हम सिल्क लेते हैं बच्चों, पुपा के अराउंड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है. इट फॉर्म्स दिस सिल्क थ्रेड जो बहुत मजबूत है, और वो सोचता है इसके अंदर मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ. एंड वी बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, वी सॉ कि ये एक लंबा सा थ्रेड है, इसको हम निकाल लेंगे. इसी थ्रेड से हम सिल्क के कपड़े बना सकते हैं. So what we do, that living organism is inside that cocoon which is made up of silk thread. उसको हम boiling water में डालते हैं और हम उस thread को निकाल लेते हैं. जब हमें कहा जाता है कि खादी सिल्क पहनिए, खादी सिल्क में फ़र्क क्या है? खादी सिल्क में उस इंसेक्ट को निकल जाने देते हैं उस ककून से, उसके बाद बनाते हैं. तो उससे क्या होगा? ये जो ककून है, हम लोग पहले ही जब निकालते हैं तो हमें एक लंबी सी सिंगल सी थ्रेड मिलती है. जब ये इंसेक्ट खुद से जिंदा निकल जाएगा उसमें से फर्दर डेवलपमेंट के बाद, तो वो फिर उस ककून को काटते हुए निकलेगा. अब जब आप थ्रेड लोगे तो उस थ्रेड में छोटे 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 बहुत सारे टुकड़े होंगे जिसे आपको जोड़ने पड़ेंगे. सो दैट सिल्क विल बी अ कोर्सर वन. थोड़ा उतना सॉफ्ट नहीं रहेगा. बट सी द प्राइस यू आर पेइंग फॉर द, वी आर पेइंग फॉर द लाइफ ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स. सो एक ये हो गया इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट. दूसरा देखिए, दूसरे हैं वेक्टर्स. वेक्टर्स में एक वेक्टर है एनोफिलस मॉस्किटो, इसको तो आप जानते हुए हो. एनोफिलस मॉस्किटो, सेकेंड इज क्यूलेक्स एंड थर्ड इज एडस. अब इन्हें कैसे आप याद रखोगे कि कौन सा ये वेक्टर है? मतलब they themselves are not the pathogens, but they carry the pathogens in their body and then they transmit it into the host. We are also the hosts.
और हमें वो बीमारी होती है। तो एनोफिलस याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये आप जानते ही हो कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इट कॉजेस मलेरिया, तो ये मलेरिया के पैथोजन को कैरी करता है। फिर आप क्यूलेक्स एइडिस को पहले ले लो, और इसे कैसे आप याद रखोगे? ए से एनीवन, सी से कैन, डी से डांस। फाइन। एइडस चिकुनगुनिया, चिकुनगुनिया एंड डी से डेंगू। तो ये तीन आपके ऐसे आपने बैठा दिए, एइडस के हो गए एनीवन, कैन, डांस, तीनों आपको ऐसे मिल गए। क्यूलेक्स में आप डालिए फाइलेरिया, दिस इज फाइलेरियल वर्म, this causes filaria. So Anopheles causing malaria, Culex causing filaria, Aedes causing chikungunya and dengue. इसके बाद हम एक थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, that is gregarious pest. Gregarious pest. Example is locust. ये लोकस्ट बच्चों दिखता तो ग्रास हॉपर जैसा है, आप दोनों को देखोगे द लोकस्ट इट रिजेंबल्स द ग्रास हॉपर, लेकिन ये लोकस्ट इतना भयंकर होता है, बहुत झुंड में ये रहेंगे और पूरे झुंड में इस तरह से पास होते हैं पूरे फार्म के ऊपर से, यू विल फील लाइक आंधी आई हुई है, बहुत सारे एक साथ ऐसे उड़ते हुए आते हैं और फिर झुंड में से जब निकल जाएंगे तो उस खेत में कुछ बचेगा नहीं। अच्छे से अच्छी फसल खत्म कर देने में ये काबिल है। दे आर ग्रेगेरियस पेस्ट, दे आर मच ड्रेडेड बाय द फार्मर्स। एक ये हो गया, और चौथा देखिए लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल, दिस इज द किंग क्रैब वी स्टडीड एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। दिस इज लिविंग फॉसिल, इट्स एग्जाम्पल इज किंग क्रैब, also called its scientific name is Limulus. इसे लिविंग फॉसिल क्यों कहते हैं? क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले भी इसके अगर जैसे हम सबके फॉसिल्स हम देखते हैं तो दे आर, वी सी दैट वी ऑल हैव इवॉल्व्ड, वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अ सिंपल फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। लेकिन इसे हम अगर देखते हैं, आई थिंक इट इज़ अबाउट 190 मिलियन ईयर्स पहले का भी इसका जो फॉसिल है, इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर एज इट इज़ नाउ विदाउट एनी चेंजेस। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, मिलियंस ऑफ ईयर्स इट हैज़ नॉट अंडरगॉन एनी चेंज, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स. So this was all about arthropods. I hope you have all enjoyed the session and you have understood all the points, and this session will help you remember the different points of phylum Arthropoda. Next we will be discussing the phylum Mollusca, the second largest phyla of animal kingdom. Hopefully you have liked the video. Then please like, subscribe and hit the bell icon to get all latest updates.